ओम नमो लोये सर्वत्कावर्ति हरियंताणम। ओम नमो लोये सर्वत्कावर्ति सिद्धाणम। ओम नमो लोये सर्वत्कावर्ति आर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्कावर्ति वज्जायणम। ओम नमो लोये सर्वत्कावर्ति सावणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तीर्थंकरो जगन्नाथजयवन्तवर्तो ओंकारनाद जिननो जयवन्तवर्तो जिनना समो शरण सौ जयवन्तवर्तो ने तीर्थचार जगमा जयवन्तवर्तो नमो ए तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संगरुतेणे नमो श्री कुंद कुंदने अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आसन अहो ते गुरु कानो अहो भगवती मातनो। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम श्री सुधात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो आज से हम स्वाध्याय चालू करते हैं। We'll try to do English and Hindi both, so you know kids can also understand. तो मुझे बताया गया था कि आत्मसिद्धि शास्त्र पर हम करेंगे, तो 10 दिन ट्राई करेंगे। 142 स्टांजा है, तो we will make sure we should be able to finish all those things in 10 days time. I can't promise you, I'll try. Okay? अच्छा, तो आत्मसिद्धि शास्त्र, what's the meaning of the word? आत्मा यानी कि आत्मा, सिद्धि यानी कि क्या? What's the meaning of सिद्धि? सिद्धि means प्राप्ति, प्राप्ति। तो आत्मा की प्राप्ति, कौन सा आत्मा की प्राप्ति? मैं तो आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेरी तो प्राप्ति मुझे हो गई है, मगर मेरे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, my pure soul, because right now in puja we said I'm impure and I will do all the steps, then I will become pure. एक एक स्टेप करके मैं प्योर होने वाला हूं। तो इस तरह से जब पूजा में इन पूजा हमने बताया कि इम्प्योरिटी से प्योरिटी तक मैं जाने वाला हूं। Similarly, over here, this scripture says how to purify the soul. So it's beautifully written stanzas, 142 stanzas, very nice. It's in Gujarati. We'll give the meaning in Hindi, English, and everything. Believe me, you know, you will understand. आपको बहुत अच्छा मजा आएगा, आनंद आएगा, और ये 10 लक्षण में मैं मेरी आत्मा की शुद्धि किस तरह से कर सकूं, उसकी मुझे समझ भी आ जाएगी। समझ, अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। जैन धर्म ज्ञान मार्गी है। जैन धर्म इज अ नॉलेज बेस्ड फिलोसॉफी। You know it. The way we say, if there's a glass of poison, if I know it, I will give it up. Similarly, here also, I would like to have purity of my soul. If I understand who am I, श्रीमद जी ने एक जगह पे लिखा है, हूँ कौन छूं क्या थी थयो सु स्वरूप छे मारू खरू कोना सबंधे वळगणा राखू के परिहरू. Means, who am I? I have to know. What is my pure state? I have to know it. Once I know it,
I will walk on that path. When you're coming to this temple, let's say I'm in downtown Toronto right now and I want to come to here. What do? I know nothing about this town. Excuse me. What do? I put GPS. GPS will tell me, take the turn here, right turn, left turn, this freeway, that freeway. When I know it, then to come to the temple, it becomes easier. Similarly, when I know it, who am I? Then it becomes easier. मेरे लिए सच्चा पाथ हो जाता है कि मैं अपने आत्मा की शुद्धि कैसे करूं. तो उसका ये आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की है श्रीमद राजचंद्र जी ने. श्रीमद राजचंद्र जी is about 160 plus years back. He was born in Gujarat. And he lived only for the age of 34. Too bad that he was an extremely learned saint and lasted only short life. All the best people, they last for short time only. Like Moksha Prakashak, Pandit Todamalji, age 45, 46, and then his life came to an end. So similarly here also, he is only 34 years of age. But what he did is a fantastic thing he did. Age 24, he obtained Samyak Darshan. Unka Samyak Darshan age 24 पर हुआ. And age 29 पर उन्होंने एक दिन में बैठकर ये आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की. शाम को आसोवद एकम, that's a date. And about 160 years back, he was in a city called Nadiyad in Gujarat, came back in the evening. His assistant was there and he says, I'm going to write down. So for an hour and a half, he wrote down 142 stanzas without moving his pen, period, nothing, continuously writing. 142 stanzas created in an hour and a half. And उसका एसेंस है जो हमको बताएगा मैं अशुद्धता से शुद्धता की तरफ कैसे जाऊं. So this is the picture that actually he has written. There is something called one paragraph he wrote down, 2-3 pages he wrote down called Chau Padma Patra. The tenets of six tenets later he wrote down. And he wrote down for this person, Sobhakbhai, Srimad is 29-year-old. Sobhakbhai, his disciple, 68-year-old. This person said, I'm getting old and I can't remember the whole written thing. Can you write down something in poetic form? So he said, okay, I'll write down. So his assistant called Ambalan Bhai stand up with the lantern and he's writing आत्मसिद्धि शास्त्र. 142 गाथा 1.5 घंटे में उन्होंने लिख दी. और it is exactly essence of the religion. It's written 160 years back almost. So that way we also, it's a right now it shows where we are. And so it talks about it. So that's what Atmasiddhi Shastra is about. So now this is the write-up. This is his writing. This is his handwriting. And all 100, I just took the first page only, all 142 stanzas are written that way. In Phoenix Temple, we have all 142 stanzas and we have one huge chitrapat for that. So you can just say that. And we also have Srimadji's chitrapat down below and he has the one written this Atmasiddhi Shastra. So what is so good about it? So that's what we just talked about it. In भारतीय संस्कृति में, प्राचीन संस्कृति में एक नियम है कि जब कोई भी शास्त्र लिखा जाता है तो पहली 1 और 2 और 3 गाथा में मंगलाचरण आता है. मंगलाचरण यानी कि मैं ये ग्रंथ में क्या कहने वाला हूं, मेरा आशय क्या है, कौन सी एंटिटी के
मदद लेके मैंने ये शास्त्र लिखा है। इस तरह से एक प्रीफेस आएगा। When you go to the airport and you still have a time before catching a flight, you go to the bookstore and you just look at the books. So there is a preface written front and back, and you just say, is it science fiction, non-fiction, is a history book, is a politics, whatever. If you like it, you just buy it. Similarly, यहाँ पर in this stanza, in this any scripture, they will write down 1 or 2 stanza exactly preface. What is this scripture about? So it's called Anubandha Chatushtay. Anubandha means together. Chatushtay means 4 things. Mangal Stuti, Abhidhe means Vishay, Prayojan, or Sambandh ka Nirdesh. Yet 4 things he's going to describe in any scripture that he writes. Anybody writing any scripture, they will mention all these 4 things. Mangal Stuti. What's a Mangal? What's the word Mangal means? Mangal has 2 meanings. Manga plus la. Manga means auspicious thing. La means layati, means to bring. Wo lata hai. Means Mangala means to bring auspicious thing. Or second meaning of Mangal, Mang plus Gal. Mang means pap, Gal means galati, one which removes the pap. So one which removes inauspicious thing, one which brings auspicious thing. Oh Lord, I'm writing this scripture, so please give me strength, so all my inauspicious thing, they disappear, and auspicious thing come, and without any problem, I can finish the scripture. That kind of internal desire the writer is writing. That's called Mangal Stuti, right? That's the first one. Abhidhe, what's the subject matter in this scripture? ये जो शास्त्र में लिख रहा हूं उसमें विषय क्या है? तो आत्मा सिद्धि, आत्मा की सिद्धि, to obtain the purity of the soul. That's my subject matter. So subject matter he is going to describe in the first or 2 stanza. Then prayojan. Why should I write this kind of thing? What's the reason for writing this one? उसका प्रयोजन क्या है? लिखने का, शास्त्र लिखने का प्रयोजन क्या है? तो मेरी अशुद्धि दूर हो जाए, मेरे में शुद्धता की प्रकट हो जाए, ये प्रयोजन से। या तो यहाँ पर दूसरी दृष्टि दिया है कि प्रयोजन क्या बताया है कि अनादि काल से ये जो सब धर्म की बात है वो लोप यानी कि थोड़ी कम हो गई है, तो उसको फिर से जागृत करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। वो मेरा प्रयोजन है। What's the essence of this writing this scripture is to rekindle the spirituality in every living object, living being, which has gone waxing and waning. So that's what my problem. और संबंध का निर्देश means किसके संबंध में मेरे गुरु कौन है, अपर गुरु कौन है, परम गुरु कौन है, तो उनको याद करके यहाँ पर शास्त्र लिखा जाएगा। तो लास्ट वन इज एसोसिएशन, whose association I have to write this scripture. So these are the important thing. First 1 or 2 stanza, everywhere it's been mentioned. Here in this thing, 2 stanzas, first 2 stanzas are the Mangalacharan. जो शुभ को लाए अशुभ को दूर करे उसे मंगल कहते हैं। आरंभ किया हुआ कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए, ऐसी भावना से मंगलाचरण किया। अपने इष्ट के प्रति, देव गुरु शास्त्र के प्रति नमस्कार किया जाता है। तो whenever we do, when we say Namokar mantra, means I remember, I bow down to Aryan Bhagwan. As soon as I enter the temple, what do I say? Om Jaya 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 Nissihi Nissihi Nissihi. Yani ki I'm removing all my thought process of worldly object. I remove my thought process about this temple. ये क्यों अच्छा नहीं है, ये क्यों है, ये सीढ़ी क्यों यहाँ पर, ये ऐसा एक वो भी मंदिर का भी मैं सोचने वाला नहीं हूँ। और तीसरा, प्रभु आपकी प्रतिमा जी के संबंध में भी जो मेरे सोच है वो भी मैं निकाल दूंगा और तू और मैं एक हो गए।
means now I pay my absolute attention to you. That's what we do. That's what we enter. Over same way over here. The namaskar towards the omniscient Lord, Holy Scripture, and my true gurus. I bow down. This is called Mangalacharan. So Mangalacharan में मंगल में हमने बता दिया क्या 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 आता है. Mangal means the auspicious thing to bring. Excuse me. Inauspicious thing to remove, and that's why there's Mangalacharan. What's a vishay? What's a subject matter in this one? What it says, ग्रंथ में जो वस्तु का वर्णन किया उसको अभिधेय यानी कि विषय कहते हैं. अभी विषय को जानने के बाद में वाचक को मालूम पड़ता है कि ये ग्रंथ का विषय क्या है. By listening, by reading this subject matter, one decide, do I want to go through this one or I don't want to go through this one? It's too high, I don't like it, so I don't want to go for it. Or it's too low, it may not enjoy me, I may not enjoy it, so I don't want to do it. Is it for my level or not? That's what Abhideya Vishay will tell us. Then what's a intention? What's a prayojan? Prayojan क्या है लिखने का? ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है? मीन्स का हेतु क्या है और इसका फल क्या होता है वो दिखाई दिया. कौन से फल की प्राप्ति के लिए मैंने ग्रंथ बनाया है? मुझे $1 million चाहिए, तो तू यहाँ नहीं आना भैया, यहाँ से तुझे नहीं मिलेगा $1 million. तुझे भौतिक सुख चाहिए, तुझे ये कार चाहिए, इसलिए तू भक्ति करने आया, तेरा काम नहीं होने वाला है. यहाँ तो जो नग्न दिगंबर भगवान जी है, तो वो मुझे क्या देंगे? वो मुझे मैसेज देंगे क्या मुझे करना है. तो मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये ग्रंथ बनाया है. साथ में अधिकारी वर्ग का भी निर्देशन किया है. अधिकारी वर्ग कौन? हु इज द एलिजिबल ग्रुप ऑफ पीपल लिसनिंग दिस ट्रांजा. क्योंकि सब देखो, कोई पीएचडी का प्रोफेसर यहाँ पर आ गए और हाई स्कूल के किड्स हैं, बच्चे हैं, ग्रेड स्कूल के बच्चे हैं, तो वो क्या बोलेंगे? वो कुछ भी बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा. तो ऐसे क्या किसकी प्राप्ति के लिए ग्रंथ बनाया और अधिकारी वर्ग भी क्या है उसकी बात यहाँ पर आती है. तो इस तरह से प्रयोजन की बात यहाँ पर आती है. और संबंध में शास्त्र मति कल्पना से मैंने रचना नहीं की है. तो इष्ट के साथ संबंध बताए. इष्ट यानी कि कौन? जो मेरे श्रेय के लिए है, जो मेरे काम के लिए है, उसको इष्ट देव कहा गया. तो पूर्वाचार्यों के साथ ग्रंथ का संबंध बताया जाता है और ग्रंथ का मूल्यांकन बढ़ता है. देखो, मैंने ये ग्रंथ लिख दिया, पढ़ लो. मैंने आर्टिकल लिख दिया, पढ़ लो. तू क्या है? कौन है? तेरा संबंध क्या है? मगर ये मैंने तीर्थंकर भगवान की आमन्या में आज गणधर भगवान और आचार्य परंपरा के साथ में मेरे गुरु के उपदेश से ग्रंथों को पढ़ने के बाद में और मेरी अनुभूति के बाद में मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं. ऐसी जब बात हम करते हैं तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो ये संबंध बताया गया है. इस तरह से यहाँ पर मंगलाचरण में ये 2 गाथाएं आएगी. तो अभी हम ये गाथा पर जाते हैं. 142 गाथा है. विल ट्राई टू मेक श्योर हमको समझ में आ जाएगा. एक्चुअली पहली गाथा जो समझ में आ गई तो 142 गाथा समझ में आ गई. इसकी बात है. या तो समय साहब ने देखो, पहली 16 गाथा जो आपको समझ में आ गई तो सारे की सारे 415 गाथा और 278 कलश सबका आपको ज्ञान हो गया. आचार्य भगवान को भी मालूम है कि मेरे पास समय नहीं है. मैं ऐसा बोलता हूं समय नहीं है. समय है मेरे पास, सब कुछ समय है.
कुछ भी मैं थक गया हूँ, ऑफिस से आया हूँ, थक गया हूँ, सारा दिन काम किया है, और कौन सा भी नया मूवी कौन सा है, मूवी कौन सा नया आया अभी, जवान। जब तो जवान मूवी आज आया है, पर डॉक्टर साहब चलो देख लेते हैं। अरे तो सारा दिन 5 मिनट पहले तो बोला कि मैं थक गया हूँ, मुझे टाइम नहीं है, मुझे 3 घंटे के लिए तू बैठ गया, आंखें बंद होती थी, आंखें फड़फड़ पड़ गई, कॉफी पी लिया, चाय पी लिया, वहां तुझे समय मिल गया। यहाँ मंदिर में आने में समय नहीं मिलता है मुझे, तो भगवान हिसाब नहीं रखते हैं ना, इसलिए तो हमको आचार्य भगवान ने भी समझने के बाद में बोला कि अच्छा तेरे लिए मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये पहली गाथा जो है, इसमें जो पहली हम 15 मिनट के बाद 15 मिनट तक हमने जो कुछ बताया वो सब का एसेंस पहली गाथा में आता है। तो ये पहली गाथा हम पढ़ते हैं यहाँ से। एक मिनट। तो या ही इज वर्किंग ऑन समथिंग। ओके, तो इसमें क्या बात आई है, जे स्वरूप समझ। देखो ये एक गाथा आपने समझ ली ना, आप सारा घंटा एक गाथा पर ही चलेगा, तो आप बोलेंगे ये एक गाथा में 1 घंटा चला है, तो 142 गाथा कब समाप्त होंगे। जे स्वरूप समझ, देखो ये एक गाथा आपने समझ ली ना, आप सारा घंटा एक गाथा पर ही चलेगा, तो आप बोलेंगे ये एक गाथा में 1 घंटा चला है, तो 142 गाथा कब समाप्त होंगे। आपने समझ ली ना, आप सारा घंटा एक गाथा पर। ओके, सो एक समझ में, एक गाथा समझ में आ गई तो सारी की सारे 142 गाथा में क्या आता है एसेंस आ जाएगा। तो one first stanza alone, when we understand, rest of the things are very easy to understand. जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, उसका अर्थ क्या होगा, मेरा स्वरूप नहीं समझने से मैं अनंत काल से दुखी हूं। मैं दुखी क्यों हूं, जैसे बच्चे ने बोला कि मेरी हैप्पीनेस तो विद इन है, मेरी हैप्पीनेस बाहर से, बाहर के द्रव्यों से नहीं आती है। तो मेरा जो सच्चा स्वरूप मैंने समझा नहीं, इसलिए मैं अनंत काल से दुखी हूं। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, सुख दुख की सुखाभास दुख, ऐसी मेरी प्रवृत्ति चलती रहती है। तो समझाव्यूं ते पद नमो, जिसने मुझे वो समझाया, सदगुरु ने मुझे समझाया है, इसलिए मैं सदगुरु को वंदन करता हूं। ये 2 लाइन का मीनिंग हो गया। जो मेरा सच्चा स्वरूप अनंत काल से है वो समझ में नहीं आया, इसलिए मैं दुखी हूं। और जब मैं अपने भाव, जो जिसने मुझे समझाया, अरियन भगवान ने समझाया, शास्त्र ने समझाया, सदगुरु ने समझाया, इसलिए देव शास्त्र गुरु को मैं नमस्कार करता हूं।
यहाँ देव शास्त्र गुरु की बात में सदगुरु बताए, क्योंकि श्री सदगुरु भगवान, श्री मीन्स शास्त्र, सदगुरु मीन्स सदगुरु, और भगवान मीन्स हमारे आर्यन भगवान। तीनों का देव शास्त्र गुरु की बात यहाँ पर आ गई, नमस्कार किया। हमने भी क्षण भर निज रस कोपी चेतन मिथ्या, इसमें क्या बताया? देव शास्त्र गुरु को नमन किया। यहाँ क्या बताया? देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस लाइफ में है। आर्यन भगवान ने जो, आर्यन भगवान की पंचकला प्रतिष्ठा हुई तो भगवान में भगवान का भगवान स्थापित किए गए, इसलिए हम भगवान के सामने बैठते हैं। यहाँ समोसरण कहाँ गया? समोसरण अभी मैं देखा था, समोसरण लेके कोई आया था। हाँ, वहां पर पीछे समोसरण बनाया है पाठशाला में बच्चों ने। तो समोसरण में भगवान क्या कहते हैं? भगवान देशना देते हैं, माइक्रोफोन लेके बैठ जाएंगे, यूट्यूब चालू करने के, जूम चालू, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आएगा? तो ओम शब्द से क्या हुआ मेरा? अरे ओम शब्द में ओम निराक्षरी है, इसमें 12 अंग और 14 पूर्व का वर्णन आ जाता है। ओम शब्द में हमने, यहाँ मैं कल देख रहा था, वहां लिखा है ओम शब्द का अर्थ पहले वो आपके पीछे लिखा है ना, वो जो कलर वाला ओम लिखा है ना, इसमें लिखा है कि ओ आ उ म, उसको कंप्लीट करो तो ओम हो जाता है। ओम शब्द में पंच परमेष्टि आ जाता है। ओ मीन्स अशरीरी, दूसरा ओ मीन्स अरिहंत, आ मीन्स आचार्य, उपाध्याय, म मीन्स मुनि। ओम शब्द में पंच परमेष्टि की बात आ गई। अरे पंच परमेष्टि नहीं भैया, पंच परमेष्टि नहीं, 12 अंग 14 पूर्व की बात आ गई। हाँ, 12 अंग 14 पूर्व होते हैं। अरे नहीं, समझ, 12 अंग में पहला अंग है आचार अंग सूत्र। कितने चैप्टर? 18,000 चैप्टर। एक एक चैप्टर में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक। कितना कंप्यूटर वाला कहाँ गया? कितना हो गया? गिन के बता देंगे। तो ये तो पहला आचारण सूत्र हुआ। सूत्र कुता दूसरा सूत्र हुआ। 36,000 चैप्टर, एक एक में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 12 अंग और 14 पूर्व ओम शब्द में ये सब आ जाता है। इसलिए ओम शब्द में सारी जिनवाणी आ जाती है। तो हमने ये मूर्ति में आर्यन भगवान को स्थापित किए हैं। आर्यन भगवान ने ओम ओम दिव्य ध्वनि दिया तो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ जाते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है। तो आर्यन भगवान यहाँ पर स्थापित है। मेरी कैपेसिटी के अनुसार जब मैं शास्त्र पढ़ता हूं, मेरी समझ में आ जाएगा। ये आर्यन भगवान की इंपॉर्टेंट विशिष्टता है। शास्त्र जो उनके लिखे गए शास्त्र, और हमारे जिनवाणी सब यहाँ पर पड़ी है। जिनवाणी को माता कहा, तीर्थंकर को पिता कहा। यानी जिनवाणी को तीर्थंकर जितना ही मान सम्मान देना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर बहुत आनंद हुआ। यहाँ पे ये टेबल रखा है तो जिनवाणी टेबल पर रहती है। बहुत सी जगह पर ऐसा नहीं होता है। कोई जिनवाणी फ्लोर पर रख देता है, कोई पांव पर रख देता है। नहीं, ऐसा नहीं। आपके यहाँ पर परफेक्ट रीत से चालू जिनवाणी की महत्ता हो रही है। दैट्स वेरी गुड। और गुरु यानी कि जो सदगुरु देव है, जो मेरी लैंग्वेज में मुझे समझाएंगे, देव शास्त्र गुरु। देव शास्त्र गुरु का इंपॉर्टेंस मेरे लिए है। इसलिए यहाँ पर पहली गाथा में ही देव शास्त्र गुरु को नमन करके बताया गया कि प्रभु आपने जो रास्ता बताया है वो रास्ते पर चलकर मैं अपना कार्य करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, श्रीमद जी कहते हैं मैं लिख रहा हूँ देव शास्त्र गुरु की निश्रा में रहकर मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस स्क्रिप्चर with the help, with the guidance from Aryan Bhagwan, Holy Scripture and enlightened true saints, and they are they lead me to the right thing,
And by bowing down to you, I just take the vow that whatever I write, nothing will be against your words. Everything will be according to your discourses, your suggestions, your upadesh. Those are the things. So over here. So, Je Swarup Samjhana Pame, I have not understood my true nature. And that's why, since time infinite, I'm unhappy. So time infinite, I said, body is mine, body is mine, body is mine. Nigod Jeev, 1 second, takes birth and death 18 and a half times. He also says, body is mine, body is mine, body is mine. Ekindri Jeev, Doendri, Tendri, Chaurendri, Pancha. एक चीटी जा रही है, आपने शुगर डाला तो क्या करेगी? शुगर के पास आएगी. आपने अग्नि रख दिया तो वो भाग जाएगी, क्योंकि body is mine, body is mine, body is mine. Chiti also thinks the same way. So if anything, snake, scorpion, fly, on my hand is a fly. If I just do like this, fly runs away because fly doesn't want to get hurt, because my body is important. So body is mine, that's a wrong faith I have. And that's why I have infinite misery. Transmigratory suffering is there. And who will explain to me that one? I'm bowing down to Dev Shastra Guru. Now, some of the things we'll just bypass because now. Srimad Ji gave the spirituality and saying that there are 6 tenets are there. 6 pillars of spirituality is there. And he described soul is there, Atma che, Atma hai, soul is eternal, Atma nitya hai, soul is doer, Atma karta hai, soul is a enjoyer, Atma bhukta hai, moksha hai, liberation is there, and means of liberation is there. So in a 6 steps, he's going to explain whole reality. Who am I? What am I? How can I obtain myself? And all those true states he's going to describe in a 6 chapters in the form of question answer. The student is asking question, and the enlightened saint gives the answer. Question answer, question answer. So 6 steps question answer के form में आ जाएंगे. तो पहली गाथा में first stanza, how do I have the 6 chapters explained, 6 tenets explained? What's the first one? Atma hai. Soul is there. That's the first one. How does the first stanza explain? Atma hai. मैं अनंत दुख पाया हूं, यहाँ आत्मा है. जी स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत. यानी कि who is suffering? I am suffering. I means who? This body, right? I means the soul. Soul is suffering. So first one, by just saying that Pamyo Dukha Anand, मैं अनंत काल से दुखी हूं. कौन दुखी हूं? मैं means आत्मा. तो आत्मा है, वो यहां पर उन्हें सिद्ध कर दिया. 6 पद पहली लाइन में बता देंगे. तो आत्मा है उसको बता दिया. सोल इज देयर, ही शोड दैट वन. नाउ आत्मा नित्य है, दैट्स सेकंड. आत्मा नित्य, वो सेकंड स्टेप आ गया. तो कहां से आ गया? जी स्वरूप समझा. पाम्यो दुख अनंत. अनंत मीन्स not 1 year, not 1 day, not one hour, but for infinite time in the past. How can I be there infinite? Because I exist for time infinite. मेरी और मेरा अस्तित्व अनादि अनंत है. आत्मा कभी मरता नहीं है. देखो, जब हम 10 लक्षण की पूजा करेंगे ना,
10 वर्ष की पूजा के अंदर पहली पूजा में पहली लाइन में आता है कि मैं कौन हूं। किसी ने मुझे गाली दी, मुझे गाली दी आत्मा को नहीं, शरीर को लगा। किसी ने मुझे हाथ पैर काट दिया, आत्मा के हाथ पैर काट गए नहीं, मेरे शरीर तो क्षण भंगुर है। और जो मैं त्रिकाली शुद्ध द्रव्य हूं, उसको कोई मार नहीं सकता, कोई अग्नि चला नहीं सकती, कोई पवन उसको दूर नहीं कर सकता, कोई समुद्र उसे डुबा नहीं सकता। आत्मा अनादि अनंत जैसा है वैसा ही रहता है। श्रीमद जी ने एक जगह पर कहा, मैं दूसरा महावीर हूं। हाँ, अरे महावीर हो गए, यहां हमारी महावीर प्रकार की मूर्ति रखी, आप महावीर हो गए, कैसे हो गए? अरे जो महावीर का जो आत्मा था, जो मरीचि के रूप में अशुद्ध आत्मा था, जो महावीर स्वामी के रूप में उन्होंने कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन निर्वाण पद लेकर जो अजर अमर पद अपना प्राप्त किया, ऐसा मेरा भी पद अजर अमर शुद्ध पद है। तो महावीर और मेरे में कोई फर्क नहीं है। इस तरह से यहाँ पर बताया कि आत्मा नित्य है। पहला पद कौन सा था? आत्मा है, दूसरा आत्मा नित्य। तो अनंत शब्द से आत्मा नित्य है वो प्रूव हो गया। सो व्हेन इट सेज infinite soul exists for infinite time. That's why the second tenet it says soul is infinite with the word anant. जी स्वरूप समझाना पाम्यो दुख अनंत 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 word, right? Third, अभी third one is आत्मा करता है, means आत्मा is doing something. देखो कोई भी ऑफिस में जाओ, यहाँ आने के पहले मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, तो हम गए पासपोर्ट ऑफिस में गए, तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया ऐसा 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 करने का। बाद में वो PSFP चेक जैसे वो एक चेकिंग करने वाली गर्ल थी, सी चेक इट आउट। बाद में थर्ड विंडो पर वो लड़की ने हमारा पेपर्स चेक कर दिया। तो एवरीबडी डज देयर ओन वर्क, everybody doing their own work. Maybe बच्चा स्कूल जाता है, पेरेंट्स वर्क पर जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स मंदिर में जाते हैं, तो अपना अपना हर अपना कार्य करते हैं। तो कोई भी द्रव्य अपना कार्य करता रहता है, तो आत्मा भी द्रव्य है, तो वो भी कुछ करता होगा। क्या करता होगा? जे स्वरूप समझाना पाम्यो दुगन सच्चा पुरुषार्थ किया होता तो सुख मिलता होता, उल्टा पुरुषार्थ किया तो दुख मिला। उल्टे पुरुषार्थ को कर्तापना कहा। मैं अनादिकाल से दुखी हूं क्योंकि मेरा पुरुषार्थ उल्टा था। अभी मैं सच्चा पुरुषार्थ करूंगा तो मेरा क्या होगा? मुझे सुख की प्राप्ति होगी, अनंत दुख दूर होगा, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरे पद की बात आई, आत्मा करता है। Soul is a doer. How does it? Soul is doer because every substance keeps on doing some activity. Everything they do, all kind of activity, specific activity for that. Kid will go to the school, teacher will teach, parents will go to work, grandparents will do the whatever gardening and all kind of thing, everything. So everybody doing some work. So soul is doing some work also. What is the work? For time infinite, soul did a altered personal effort. That's why soul is unhappy. Soul will do the right purusharth. Soul will be happy. That's a doing. So soul is a doer. That's the third thing is over here. Atma hai, nitya hai, karta hai. Soul is there. Soul is for eternal. Soul is doer. Now, चौथा पद कौन सा आया था? आत्मा भोक्ता। मीन्स क्या बताया यहाँ पर? आत्मा भोक्ता है। पाम्यो दुख अनंत। मैंने उल्टा पुरुषार्थ किया तो मुझे क्या हुआ? अनंत दुख की प्राप्ति हुई।
सुलटा पुरुषार्थ करूंगा तो क्या होगा, अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। तो ये भोक्तापना हो गया, ये फीलिंग हो गई। तो आत्मा भोक्ता है। ये चौथा पद यहां से ही एक गाथा में से ही निकला। सोल इज soul endures happiness or misery for time infinite. I did a wrong action, so that's why I was suffering birth and death, birth and death, birth and death. And if I do the right thing, I realize soul, I get samyak darshan, I will go to liberation, I will have everlasting happiness. So that is the enduring. Soul endures its own work. So आत्मा भोगता है। हो गया 4। अभी कौन सा 5th आएगा, मोक्ष। ये सब बता दिया आपने, तो क्यों मैं करूं ये सब कुछ। बहुत साल में मैं करीबन 6, 7, 8 साल का होगा, हमारे कॉलेज में प्रतिष्ठा होती थी। कॉलेज में मेरा जन्म हुआ था जब गुरुदेव श्री आए थे और कॉलेज में प्रतिष्ठा हो रही थी और गुरुदेव श्री प्रवचन दे रहे हैं। एक हमारे वहां पर एक वो फरसान की दुकान वाले लाला जी थे, तो वो बेचारे बहुत इनोसेंट आदमी थे। बोला कि गुरुदेव आप मोक्ष 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 कहते हैं, यहाँ तो मेरी दुकान है, सुभाष है, उसके बच्चे हैं, बीबी है घर पर, तो सारा दिन निकल जाता। मोक्ष में जाके करने क्या है, मोक्ष में जाके करना क्या है, क्यों जाऊं मैं मोक्ष में। तो सभी लोग हंसने लगे। I still distinctly remember that laugh from the whole audience. अरे लाला तू क्या बोलता है क्या। गुरुदेव ने बोला लाला जी खड़े हो जाओ, तूने जो प्रश्न पूछा है ना सभी के माइंड में है, किसी की हिम्मत नहीं है पूछने की, तूने प्रश्न पूछा, दैट्स आई अप्रिशिएट दैट वन। तो बाद में उन्होंने बताया कि तू जो सुख की बात करता है वो क्षणिक है, मगर तुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहिए तो ये मोक्ष में तुझे शाश्वत सुख मिलेगा। मोक्ष में जाके सारी दुनिया को मैं देख, अरे वो उसके लिए मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, मैं तो मोक्ष कयो नीच शुद्धता, मेरी अपनी शुद्धता को मोक्ष कहा है। मोक्ष ऊपर है नहीं, मोक्ष यहां पर जब मैं शुद्धता की प्राप्ति करूं उसका नाम मोक्ष है। तो ये मोक्ष है। तो मैं अनंत दुख पाया था और अभी मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो मोक्ष है इसका, अनंत दुख को दूर हो जाने से अनंत सुख की प्राप्ति है मोक्ष। पाम्यो दुख अनंत, उसके सामने पाऊंगा सुख अनंत, पाऊंगा सुख अनंत, उसका नाम मोक्ष। तो मोक्ष है। मैं I want to have pure happiness, that's called liberation. So pure happiness is within, pure impurity is within. When I do go within, purify myself, that's called moksha, that's called liberation, is happiness. So moksha hai, that's what it shows in this first stanza. Now, you said everything. श्रीमद जी ने बोला कि मैंने सब कुछ बता दिया, मगर तू अभी क्वेश्चन करता है कि ये करने के लिए मुझे करना क्या है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे करना क्या है। तो छठा पद कौन सा आया, मोक्ष का उपाय है। तो देयर इज अ पाथ फॉर लिबरेशन, तो मोक्ष का उपाय है। सदगुरु भगवान मुझे मोक्ष का उपाय समझाते हैं, बताए ना, समझा व्यूते पदनमु श्री सदगुरु भगवान। श्री यानी शास्त्र, गुरु मीन्स गुरु, भगवान मीन्स तीर्थंकर भगवान। आपने मुझे ये रास्ता बताया है, वो रास्ते पर चल के मैं अपना कार्य करने वाला हूँ। पूजा में भी हमने वही बोला ना, निश्चित तेरे सदृश प्रभु और हंत अवस्था पाऊंगा। भगवान तेरे पास आया हूँ, तेरे जैसे बनने के लिए आया हूँ। तूने जो रास्ता बताया वो रास्ते पर चल के मैं कार्य करने वाला हूँ। इस तरह से यहाँ पर 6 पद जो है वो 6 पद एक दो स्टांजा में 6 पद आ जाते हैं। तो अब मैं ये सारे का सारा विस्तार अभी 142 गाथा में करूंगा, ऐसा यहाँ श्रीमद जी कहते हैं। कितनी बड़ी बात बता दी उन्होंने।
142 गाथा को 2 लाइन में शॉर्ट में बता दिया। अभी जब मैं ये स्टांजा बोलता हूं तो मुझे ये 6 पद याद करना पड़ेगा। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, वो मुझे समझना है। तो ये पहली स्टांजा से ये सब कुछ मैं समझ सकता हूं। अरे आपने तो 2, ये बताता है कि श्रीमद जी के ज्ञान का कितना सूक्ष्म था कि 2 लाइन में 142 गाथा का एसेंस भर देना। गागर में सागर कहते हैं ना हम, तो इस तरह से ये इतनी अच्छी बात है। मैं जरूर से पढ़ूंगा प्रभु, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं आपके समक्ष रहकर मैं ये जरूर पढ़ूंगा, समझूंगा और मेरा कार्य अचूक जरूर से मैं प्राप्त करने वाला ही हूं। ऐसी बात करके हम भगवान को नमस्कार करके कहते हैं कि ये 10 लक्षण पर्व में मैं अपना कार्य जरूर करूंगा। इन दिस 10 days ऑफ दिस महापर्व I will understand this 2 lines essence. In the 2 lines it explains everything, who I am, who I was, who I am, who I could be. You explain to that, I will do that one, I will follow that one, and I will become like you. I will. मैं, श्रीमद जी ने कहा हम दूसरे महावीर है, नहीं, हम सब कहते हैं हम दूसरे महावीर है, हम महावीर है, हम ऋषभदेव है, हम सिमंदर स्वामी है, क्योंकि भविष्य में हम भी भव्य जीव है। इसलिए ये रास्ते पर चलकर हम हमारा कार्य जरूर जरूर करने वाले हैं, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हम करते हैं। तो इतनी अच्छी बात आती है। तो कल से हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई प्रश्न होता है तो करीबन 2-5 मिनट लेते हैं। एनी क्वेश्चंस? हाँ बोलो। शाश्वत सुख क्या होता है? देखो, आज 1973 में, आपको मालूम होगा भैया, हमारी बात कर रहे हैं, ये सब कर दो। तो पहली दफा मेरा पहला पेचेक आ गया और हम न्यूयॉर्क में कनाल स्ट्रीट में गए और सोनी ट्रिनिट्रॉन 19 इंच कलर टीवी, आपको मालूम है, सुना है वो शब्द किसी ने? हाँ, आप देखो, तो $450 का टीवी था, हम लेके आए। मेरे गांव में कभी टीवी देखा नहीं था, फोन नहीं था, बिजली भी नहीं थी, चलो बस। और यहां पर आए, प्लग लगाया, कलर पिक्चर आ गया। क्या हुआ, मेरे सारे शरीर में से एक ऐसी ऊर्जा पास हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। अरे ये मेरा टीवी, कितना आनंद है, कितना आनंद आया। अभी क्या है, अभी सारे एक रूम में 50 इंच का, 75 इंच का कलर टीवी, रिमोट का, सब कुछ है। अभी ऐसा भाव नहीं आता। क्यों? अरे तुझे गुलाब जामुन अच्छा लगता है? गुलाब जामुन तुझे अच्छा लगता है? हाँ, तो आज तुझे गुलाब जामुन खिलाएंगे फॉर एग्जाम्पल। तो तूने एक लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत, तो ज्ञान देने, अरे तू दूसरा ले ले, दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां ले। नहीं, अभी नहीं। जो गुलाब जामुन तुझे आनंद करता था, पहला गुलाब, 10वां गुलाब जामुन क्यों आनंद नहीं देता है? शादी हुआ है? तेरी शादी हुई है? पहले दिन क्या था, कितना उत्साह था, और अभी क्या होता है वो लिख सकते, डोंट वरी नहीं। चलो, तो पर वस्तु में से कोई सुख दुख नहीं मिलता है, क्योंकि ये कंप्यूटर में सुख गुण नहीं है, ये टेबल में सुख गुण नहीं है, अरे ये शरीर भी जड़ है, उसमें सुख गुण नहीं है। सुख तो आत्मा में है। जब मैं अंदर दृष्टि करूंगा तो मुझे आत्मा का आनंद मिलेगा। वो पर वस्तु पर निर्धारित नहीं है, अपने में से आता है। शाश्वत मीन्स eternal. That happiness keeps on coming and coming and coming and coming. You don't have to be hungry to enjoy that gulab jamun. You are everlasting happiness come from within. उसका नाम शाश्वत सुख।
permanent, everlasting. It will not become, it will not empty at all. Yeah, uska शाश्वत का. हाँ. Any other questions? Yeah. Kids rights. Anybody? Kids. My God, that's perfect. That's so beautiful. That means कि you know समझ गए तो अभी तो मोक्ष तो हाथ में आ गए.